प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। 21 दिसंबर को दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद में विज्ञान सह कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे, विद्यालय के निदेशक शोएब अहमद खान, चेयरमैन TA खान, वरिष्ठ प्राचार्य संजय कुमार झा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में विद्यालय प्रबंधन कमेटी के सदस्यों के साथ छात्र छात्राओं के द्वारा बनाए गए विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए छात्रों को विज्ञान की गूढ़ तकनीकियों से अवगत कराकर प्रेरित किए। तो वहीं छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को ऐसे प्रेरणार्थक संदेश दिए जो नवनिर्माण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि संघर्षों और असफलताओं से रास्ता न बदले, बल्कि असफलताओं से और अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर मेहनत से अपना लक्ष्य हासिल करे। कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बिना शिक्षक के नहीं बन सकता। बता दें कि इस विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 4वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं के द्वारा 100 से अधिक मॉडलों की प्रस्तुति की गई थी। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान सभी विज्ञान शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों के साथ समर्पित दिखे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं विद्यालय परिवार के अन्य सदस्यों का सराहनीय सहयोग रहा। विद्यालय प्रबंधन की तरफ से बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सराहा गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आप क्या दिखाना चाहते हैं? Sir, we are from Delhi Public School, Kadirabad. We have made medical camps. This is Aryan, Sakshi, Rishika, Ritesh, Shesh and Abhigyan. There are so many equipments like BP temperature machine, diabetes machine, temperature machine and pulse rate. One by one we will explain everything. Let's start with BP rate. This machine will tell the exact rate of the pulse rate and BP machine. And this is diabetes machine this will tell the exact rate of the diabetes sugar machine, and this is temperature machine. It will tell us in Celsius and Fahrenheit, and this is pulse rate. Which class? 70 and 70. क्या मैसेज देता है? अगर इसको ऑन कर दे तो ये पूरी लाइट ये रिफ्लेक्शन इसी लाइक दिस और ए लाइट रिफ्लेक्शन when any animal come and destroy then he can What's name? sir Name? Akshat. Which class? 5A. It's a laser light motion detector that it's for security purpose, and it works in bank and where robbers come. Sorry, to see them. Light is also reflecting in circular waves here. Sir, if you try to enter in this bank, it automatically buzzer will sound. Which class? 8. And are here to present our topic, which is the 3D working model of heart, and we're going to discuss everything about it in brief. So let's start. Our heart is a vital organ. It is a muscle that pumps blood to all the parts of our body. So now let's talk about the functions of the heart's pumping action. The heart structure. The heart has 4 chambers, 2 at the top and 2 at the bottom. The top chambers are the atrium. They receive blood entering the heart, whereas the bottom chambers are the ventricles. They pump blood out of the heart. Now let's talk about the heart electrical system. The heart electrical conduction system sends signal to make the heart beat in a regular rhythm. The sinus node or heart natural pacemaker send this signal. Now let's move forward to the heart valve. Valve open and close with each heart
start from going backward. The tricuspid valve is located between the right atrium and the right ventricle, while the mitral or bicuspid valve separates the left atrium and the left ventricle. The heart pumping cycle. Heart pumping cycle of cardiac cell begins when oxygen depleted the blood enters to the heart through the right atrium. The blood then moves to the right ventricle, which comes into the lungs to pick up oxygen. Now the last one, the heart rate. The heart rate or how fast it beats is usually between 1600 times per minute. You can find your pulse by feeling for the small pulse under your skin and then count how many beats you see in a minute. Thank you. Morning, sir. This is a model of modern city. In this city, there are 5 team names which helped in. These names are, this is the captain, Zuhaima, and I am the vice captain, Princess Palak, and then Rabama, Rasula Khatun, Samira Hassan. Now this is a modern city. A modern city is a center of democratically. A modern city is a center of. A modern city can be defined as urban area with contemporary infrastructure, amenities and technologies that support large and diverse population. Which class? 6C. गुड मॉर्निंग, मैं जिया कुमारी स्कूल दिल्ली पब्लिक से। आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन और आर्ट एग्जीबिशन लगा है और यहाँ हमारे स्कूल के सभी छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर सुंदर क्रिसमस हाउस बनाए हैं और ये हम लोगों का एग्जीबिशन है। यहाँ मिथिला कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्या कहेंगे? यहाँ हम बच्चों की क्रिएटिविटी देखेंगे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छी तरीके से चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के उन्होंने फ्लावर्स बनाए, पेपर को यूज़ करके, क्राफ्ट मटेरियल्स यूज़ करके मिथिला को रिप्रेजेंट किया है। हमारी स्कूल की सीनियर गर्ल्स थे, वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने उनका पोर्ट्रेट बनवा के, हमारी स्कूल की आर्ट टीचर ने उनका पोर्ट्रेट बना के यहाँ लगाया है। जस्ट उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि कितने महान इंसान थे, उन्होंने हमारी देश के लिए क्या क्या किया है। नाम बताइए। मेरा नाम जिया कुमारी है। क्लास? मैं क्लास 9C से हूँ। ई का बर्फीला मार्केट है, सोनो टॉप आइसक्रीम। हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ हम लोगों ने स्नो टाउन बनाया है जिसमें हमने कैफ़े रखा है, मार्केट है, आइसक्रीम शॉप्स है, एक ब्यूटीफुल माउंटेन है जो पूरा कवर्ड है स्नो से, और यहाँ कुछ घर है, कैफ़े है जिसमें हम बैठ के चाय नाश्ता करते हैं, और ये पूरा बर्फ से कवर्ड है। बर्फ बनाने के लिए हमने आर्टिफिशियल बर्फ का यूज़ किया है। न्यूज़ में है, न्यूज़ आएगा। शूज उतार के आना। कैसे लग रहा है? नॉट अलाउड प्यारी बोल रही हो तुम लोग। अच्छा, कैसे लग रहा है? सीधी जा रहा है वो लोग वहाँ पे कनेक्शन कौन बता? ये पलक सर, हम लोग एक एक करके भी तो बोल सकते हैं। चलिए सर, आप भी जाइए। नीचे कर दीजिए इस तरफ देखिए थोड़ा सा। सर मैं
क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। हम सब ये प्रोजेक्ट सब मिलके बनाए हैं। इसमें हमारा टॉपिक है मिथिलांचल, जो कि हम लोग बहुत सोच के रखे हैं ताकि हमारे मिथिला का कल्चर विलुप्त ना हो। हमें मिथिला के कल्चर को याद रखना चाहिए, मतलब उसको बढ़ावा देना चाहिए, और इसलिए हमने सब कुछ मिथिला के रिलेटेड किया है। क्या क्या बनाए हैं? छठ पूजा, सामा, मिथिला के प्रमुख फूड्स, मिथिला पेंटिंग, वस्त्र, सब बनाया है। झिझिया, पाग, ये सब। क्या नाम बताइए। सर मेरा नाम पलक है। किस क्लास में? 8th। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हूँ और हम लोग ने मिलकर पूरा मिथिलांचल का एक्सप्लेन किया है। इसमें मिथिला के विचित्र त्यौहार और सब कुछ हम दिखाया है, जैसे त्यौहार छठ और सावा, और फिर हम लोग ने मिथिला पेंटिंग बनाई है, और फिर पाग सामा छठेवा उसमें पूरा रखा है, और फिर मिथिला के भोजन को रखा है। सब कुछ को अच्छे से दिखाया है। नाम बताइए। कौन सी क्लास? मिर्चा, अचार सब कुछ है। ले लिया। हाँ, यहाँ मछली है। यहाँ के बर्तन से मिथिला पेंटिंग की हम लोग ने ये छोटा छोटा घर वगैरह है, जो भी है सब बच्चे ने बनाया हाथ से। हम लोग भी थोड़ी मेहनत करके अपना दर्शाया आपने। कैसे बच्चे के मन में आया? मैं रूपा गुप्ता दिल्ली पब्लिक स्कूल की शिक्षिका हूँ, और आज हमारे स्कूल में विज्ञान और कला का प्रदर्शन प्रतियोगिता हुआ है। उसमें हमारे बच्चों ने क्लास 8 की छात्राओं ने अपने मिथिला के कल्चर को दर्शाते हुए ये कुछ तस्वीरें दिखाए हैं। यहाँ पे छठ पूजा हो गया, जैसे मिथिला का वस्त्र हो गया, पाग पाग हो गया, शॉल हो गया, ये सभी चीज़ें हमारे मिथिला का वस्त्र है, जो हम कभी भी कोई भी हमारे गेस्ट आते हैं तो हम लोग इससे ही उनका स्वागत करते हैं। जैसे हो गया मिथिला, हमारे मिथिला पेंटिंग से विदेशों में देख रहे हैं लोग, अपना नाम कमा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने मिथिला के कल्चर को अभी से ही अपने अंदर ढालें और उसमें ढल के अपना नाम रोशन करें। जैसे अभी विदेशों में जैसे मिथिला पेंटिंग अभी दिखाया जा रहा है, वैसे अभी से बच्चों के अंदर ये सारी गुण आएगी, जानकारी होगी, तो ये लोग भी अपने मिथिला के कल्चर को दिखाएंगे, अपना नाम रोशन। Prepared a project about wonders of carbon. मैसेज क्या दे रहे हैं? In that carbon is not only harmful for us, they are much beneficial to us than we expect it to be. They are present in various forms, like in the form of graphite, diamond, Buckminster fullerenes. Diamond is the hardest natural substance now ever known to mankind. And if we talk about graphite, it is used in making pencil lids, etc. And there are many other uses of carbon. It is not only used in the respiration of plant, but also it is used in also used in making of various processes, etc. बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, जो है छोटे छोटे बच्चे जो है अपना आर्ट्स के, साइंस के सब एग्जिबिट बनाए हुए हैं, और इसमें इनकी कला, इनकी प्रतिभा सब निखरती हुई दिख रही है। और यही सर्जनात्मकता, क्रिएटिविटी जो है इनको आगे जो है और अच्छे कुछ नई चीज़ों को जो आविष्कार करने के लिए भी प्रेरित करती है। और मैं अभिनंदन करता हूँ यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो है जितने भी जो है मैनेजमेंट के लोग हैं, शोहेब आलम साहब जी है, और यहाँ के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट सबको, कि उन्होंने एक अच्छा अवसर प्रदान किया छात्रों को। और यहाँ के टीचर्स को भी मैं
कंग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने इन सबको अच्छी तरह से गाइड किया, और लड़कों को भी जो छात्र और छात्राएँ बड़े उत्साह से सब बनाए हैं, उनको भी मेरा कंग्रेचुलेशन। सर, एक अभी प्रोजेक्ट आपने देखा है मिथिलांचल की, जो छठ है, समा है, बच्चों की इस क्रिएटिविटी को क्या कहें? ये अपने कल्चर को जो है प्रिजर्व करना चाहिए, तो छोटेपन से ही सब इसको अभ्यास होगा तो आगे चलकर एक बेहतर नागरिक बनेंगे ये लोग, समाज में अपनी संस्कृति को फैलाएंगे और मिलजुल कर एक जो है भाईचारा के साथ जीवन जीने का भी इनको एक अच्छा प्रेरणा मिलेगी। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में बच्चों के द्वारा साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन रखा गया है, और बच्चे जो है वो हर क्षेत्र में, जो कला के क्षेत्र में हो या साइंस के क्षेत्र में हो, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि मैं भी हूँ जो कुछ कर सकते हैं इस देश के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है यहाँ पर बहुत से जो अपना कल्चर है उन कल्चर को भी नहीं भूला। यहाँ पर मिथिला पेंटिंग्स और जो मिथिला का हम लोगों के अंदर जो फेमस है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ सारी चीज़ें हैं रखी हुई है, पाग एंड शॉल एंड चादर्स, और इधर आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए कि किस तरह से बच्चे छठ का जो है वो सारा इंतज़ाम, मतलब कि इनको करना है अपने लाइफ में, किस तरह से अपने कल्चर को लेकर के चले, वो सारी चीज़ें बच्चों को घर से लेकर के स्कूल तक मिल रहा है। ताकि स्पेशल बनाया बच्चों ने स्पेशल ये बनाया है ताकि कल्चर जो है उनके अंदर से जाना नहीं चाहिए। आज जो देख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को लोग अपना रहे हैं, जिससे आज बच्चों के अंदर में ये हो रहा है कि दूरियां बन रही है, समाज से दूरियां बन रही है, अपने माँ बाप से, भाई बहनों से, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर्स जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। आज देखते हैं कि बच्चों को हम सही तरबियत नहीं दे पा रहे हैं, जिसका नतीजा हो रहा है ये कि देश के अंदर में जब बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो जा रहे हैं, वो अपने माँ बाप को भी छोड़ दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि वृद्धाश्रम में जो है उनके माँ बाप शरण ले रहे हैं। तो बच्चों को हम लोग ये बताना चाहते हैं और बताते भी हैं कि माँ बाप जो है उनके माँ के चरणों के नीचे जो है वो स्वर्ग है, और बाप स्वर्ग का दरवाज़ा है। और माँ बाप जिस एक्सपेक्टेशन से, जिस उम्मीद से अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी में भी कामयाबी उन्हें मिले और हमारी इज्जत बढ़े और हमारा भी देख रेख इन बच्चों के माध्यम से हो, तो ये बच्चों को इस तरह से कल्चर्स का जो है वो सिखाया जा रहा है। ये तरबियत है, ये जो नहीं चाहिए वो बेसिक नॉलेज हम लोग दे रहे हैं बच्चों को। तो ये तरबियत की ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई से पहले बच्चों के अंदर में मैनर हो, बच्चों के अंदर में अपने कल्चर्स का पकड़ हो, समझ हो, अपने समाज को आगे ले जाने की समझ हो। तो पढ़ाई लिखाई में शिक्षा देने का मकसद यही होता है कि शिक्षा देने का मकसद ये है कि हमारे अंदर में जो है मानवता हो, हम अच्छे और बुरे को समझने की सलाहियत रखें, हमारे अंदर में वो गुण हो कि हम अपने देश को आगे की ओर बढ़ा सकें। इसलिए इस तरह से बच्चे जो है, जो अभी दिखाया है आपको, ये कल्चर्स हैं इनका, इंडियन कल्चर्स और मिथिला का जो कल्चर है हमारा, उसको अपनाया। सर, क्या इसमें जो सफल अच्छे बच्चे होंगे क्या उन्हें पुरस्कृत? बिल्कुल, निश्चित रूप से इन्हें जो है हम लोग अवार्ड देते हैं। हमारे यहाँ साल में 2 बार अवार्ड मिलता है। एक अवार्ड जो होता है वो साल के अंदर में जो बच्चे हर क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनको हम लोग सम्मानित करते हैं, उनके माता पिता को भी सम्मानित करते हैं। तो इस तरह से बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे। ये चीज़ें हैं। और ख़ास करके साइंस में आप जाके नीचे देखेंगे, साइंस में बच्चों ने बहुत कुछ बनाया है। साइंस जो है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है, रास्ता है। आप देखते हैं कि जापान के अंदर में जब आप जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे वो साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो आज दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। तो हम भारत के बच्चे और भारत दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं रहे। हमारे बच्चे जो है अलग अलग कंट्री में जा कर के अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ये सब इन बच्चों का ही सपोर्ट है। इन बच्चों के बच्चे जो है यहाँ से पढ़ लिख करके जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी में, साइंस में ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इनको अगर अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा दिशा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि भारत को बहुत दिन नहीं लगेंगे कि हमारा भारत जो है वो विकसित होगा और दुनिया में भारत जो है उसका नाम होगा। थैंक यू।